Hello, good afternoon, students and class students. Because as you know, the project is going on. Exercise 5.1 is complete. For this, today, in this video, I am going to explain to you exercise 5.2's questions. Again, CBSE reduced syllabus application regarding questions reduced. Means exercise 5.2 we have to do questions up to question number 70 or 3 questions we will know. Same way we have to do in the exercise 5.3 also we have applications of that means AP regarding questions we will not do. Only just simple questions we have to do each and every. So exercise 5.2 का question number 70 the key solve करना बेटा जी. In this what is special, what is new is going on in this. That is we have to discuss in this nth term of an AP. What is nth term? An is equal to a plus n minus 1 into b. What is this form? It's used to directly in the exercise 5.1. An is equal to a plus n minus 1 into g. This is n minus 1 into g. An shows to you nth term or we say general term. Question can be asked. What is the general term? Which is the general term of the AP? ठीक है जी कि जनरल टर्म AP की क्या है? तो एडवांस जो आंसर शुड बी n is equal to a plus n minus 1 into t. This should be your answer. Then what is a here? A already you know well. First term a shows in this to you first term and n shows to you number of terms or position of term. Question in exercise you will get of such type. They will say how many terms are there and they will ask the question which term is this. कोई नंबर दे देंगे कहेंगे ये कौन सी टर्म है ऐसा पूछेंगे. और D क्या है? कॉमन डिफरेंस और you know well or difference between two consecutive terms, successive terms. Or then if there are m terms in the AP then am what is it? M terms है यानी कि टर्मों की गिनती जो वो m है like as one number में भी 6, 15, 16, 17, 18, 10, 9 कुछ भी हो सकता है आपका. ठीक है तो वो कहेंगे कि वहाँ पे m टर्म्स हैं तो am रिप्रेजेंट्स लास्ट टर्म आंसर मींस लास्ट में जो टर्म आएगी उसको क्या कहते हैं लास्ट टर्म भी हम कह सकते हैं. ठीक है और दिस वी कैन शो दिस समटाइम्स इज आल्सो डिनोटेड बाय l से भी दिया होता है. ठीक है l से भी हम शो कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं ये दिया भी होता है समटाइम्स. जैसे लास्ट टर्म इज दिस वन. नेक्स्ट इज अभी हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. दिस वन टेबल इज गिवन. इन टेबल देयर आर 4 टर्म्स और टेबल के अंदर सिर्फ क्या है हमारे पास 4 टर्म्स हैं. 4 टर्म्स के अंदर क्या क्या हमारे पास a n d एंड n ये टर्म है हमारे पास a n and d. इन 4 टर्म्स में से किसी पार्ट में कोई 3 दिए हैं एनी 3 विल बी गिवन टू यू. कोई भी 3 दे देंगे लाइक दिस वन कैन बी गिवन 1 2 3 देन दे विल आस्क दिस वन और सम टाइम they will be given this and this or d they will ask. Sometime there is a d given, a given, an is given and they will ask. Means like this out of 4 terms at least 3 will be given. आपको 3 दी होंगी. 4 टर्मों में से फॉर्मूले के अंदर जो है 4 टर्म्स हैं 4 में से कोई भी 3 आपको दी होगी और 4th आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. We can find a's value, we can find n's value, we can find d's value, a's value also using this general term of the AP formula. ठीक है से तो अभी इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर क्या क्या दिया आपको जैसे a is 7 d is 3 and 8 an they asked. सिंपल है ये तो हमारे पास पहले ये डायरेक्टली आंसर आपको पता लगेगा कि this should be learned by you. ठीक है always fixed in your brain, never forget it because without this you cannot do the question. अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास an is equal to a plus n minus n 1 into g. ठीक है n minus 1 into g. अब नो an तो दे आस्क फ्रॉम अस a's वैल्यू 7 फिल करिए प्लस और n की क्या हमारे पास 8 है minus 1 फॉर्मूले के अंदर है और d का हमारे पास 3 है. नो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फर्स्टली दिस वन 7 plus 8 minus 1 7 into 3 that is 21. an is equal to 7 plus 21 that is 28. So like this we got answer as an is equal to 28. तो इसके ऐसे 5 पार्ट्स हैं 5 पार्ट्स हैं और उनमें भले किसी में ये पूछ लिया और किसी पार्ट में डी पूछ लिया like this they ask the question. ठीक है से out of these 4 terms 5 parts है so means you have to do by using this formula. One more part I will explain to you or then you have to complete this.
Okay, now see the one more part of this I'm going to take for you. Suppose there is a fourth part. Which part is fourth part? In fourth part, what is given to you is minus 18.9, or next is D given. D is 2.5 and N they asked from me, or then last is N is 3.6. Nothing is question in the decimal form, decimal number is there. ठीक है से, तो यहाँ से बेटे आपने नोटबुक पे भी ऐसे ही करना है, आपने टेबल में नहीं आंसर भरने हैं, आपको क्लास वर्क नोटबुक पे अपने नोट्स बनाने हैं, मतलब कि पूरे पार्ट्स को सॉल्व करके. Then what is an is equal to a plus n minus 1 into d. For an is given to you 3.6, a is given 18.9 plus n is not given to you 1, d is given 2.5. This one because ये आपके सामने है. तो this depend upon you want to open the bracket first. ठीक है, ब्रैकेट भी ओपन की जा सकती है, अदरवाइज फर्स्ट टेक दिस a to the which hand, left hand. 3.6 minus 18.9. One thing more, here is a minus is also given to you. Here is minus. This I forgot to take here. Minus ले यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अभी प्लस बन जाएगा. To the when we take to the left, so this will become positive. n minus 1 into 2.5. Bracket means multiply ही होता है बेटा. ठीक है जी. Now you have to add addition substrates. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको केवल डेसिमल का एडिशन भी नहीं आता है. ठीक है जी. That's why I am going to explain to you. ये ऐसे पॉइंट के अंदर पॉइंट लिखना होता है, पॉइंट वाले कॉलम में पॉइंट लिखना होता है, बाकी जो डेसिमल प्लेस के आफ्टर जो डिजिट पहला है, ठीक है, डेसिमल प्लेस फर्स्ट जो फर्स्ट है उसके नीचे वही डिजिट उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए. ठीक है जी. मतलब 51 12 1 2, तो ये बन गया आपके पास 22.5. What is this? 22.5 will become this one. Yeah, you have to take here is equal to n minus 1 into 2.5. Then बेटा जी अभी क्या है, ब्रैकेट खोल लीजिए, अदरवाइज 2.5 साइड लेके आइए और ये करेंगे इसको डिवाइड कर देगा. What will do? डिवीजन आ जाएगा इसके. ठीक है जी, डिवीजन हो जाएगा. What will come then? 22.5 over 2.5 is equal to n minus 1. अब ये बच्चे तो इतने मिल एक्सपोर्ट होते हैं कि they can do easily this one. Those who have problem they can do in this way. यहाँ पे इसका 10 over 25, यानी कि इसका वैसे 25 over 10 है तो वो ऊपर चला जाना. ठीक है, so later on means in the numerator will be shifted. ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा से, और ये 25 का टेबल पढ़ लीजिए, 5 से कैंसिल कर लीजिए एज अ विश. अब जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है they can do easily this one. 25 1 से 25, 25 9 से 225. Overall we got n minus 1 is equal to 9. What is there? 9. Or then n is equal to 9 plus 1, or that is n is equal to 10 we have. n is equal to 10. तो बेटा n की वैल्यू 10. और दिस वाज आस्क्ड बाय देम. ये हमारा क्या हो गया, आंसर है. ये इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. अब हम और इसके थोड़े से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस आगे डिस्कस करते हैं. Now we will do the question number second. There are two parts or MCQ type question. Question is क्या कि choose the correct choice and justify your answer also. तो justify के लिए means आप reason देंगे. Reason means वहाँ पे calculation show कीजिए कि whatever the answer you want to give वो कैसे है. ठीक है. For this what is the question first part जिसका क्या है, the 30th term of the AP. क्या फाइंड करना है, 30th term पूछा है कि 30th term तो इस AP की कौन सी होगी, which term will be 30th term of this AP. और AP हमारे पास क्या है, 10 7 4 and so on. किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा से. तो मींस 30th term का मतलब A30 we can say in short form. वैसे हमने कहा 30 किसको मिल सकते हैं, A30. क्या पूछा इसको, एमएल के लिए क्वेश्चन हमारे लिए इंटरग्रेटेड लगा दिया. व्हाट इज A हियर, क्योंकि AP ऑलरेडी गिवन देयर इज A is 10 और D is 8 minus A1 that is 7 minus 10 that is minus 3. और हमारे पास n क्या है, जहाँ से देखो यहाँ से पता चलता है बेटा 30th term. अब ये क्या मींस ये टर्म होती है कि इतना आंसर आएगा इसका. A30 मतलब जो 30 टर्म है वो -77, यानी कि जो 30वें नंबर पे जो पोजीशन है उसका जो टर्म है वो क्या है, ये हमारे पास -77. तो मींस ये भी जहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं काफी
तौर पे, मतलब मैक्सिमम दे गेट द कंक्लूजन हियर। तो यहाँ से 30th टर्म का इट मींस n इज गिवन टू यू, ठीक है, n इज गिवन टू यू हियर। फॉर्मूला भी लगेगा n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 into t, और a30 इज इक्वल टू, ये पूछा 30th टर्म, दैट्स a30 इज इक्वल टू a प्लस a वाज गिवन आल्सो, सॉरी यार हम भर सकते हैं, ये वैल्यू हम भर कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू माइनस 3, और देन 10 प्लस यहाँ से क्या क्या 29 इंटू माइनस 3, और देन मल्टीप्लाई किया बेटा, प्लस माइनस माइनस 87 बन गया, और 830 इज इक्वल टू 10 माइनस 87। तो आफ्टर दिस यहाँ पे मैंने सारी टर्में शो कर दी आपको, ठीक है। सो यहाँ पे इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा ये है 830 इज इक्वल टू 10 माइनस 87। अब क्या है, वन नेगेटिव है, वन पॉजिटिव, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, और आंसर विल कम देयर व्हाट इज नेगेटिव। नेगेटिव क्या है हमारे पास 77। अब क्या की जो 30th टर्म है वो क्या आएगी -77, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो नेगेटिव में हमारे नंबर जाएंगे, तो जो हमारा 30th टर्म होगा क्या होगा हमारे पास -77। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन इसकी कौन सी है, सी है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट है इसका, ठीक है जी। तो आप अपने मतलब टिक कर लेंगे, बट मींस फॉर द एमसीक्यू आंसर हियर जस्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, मींस आपको ओवरऑल सॉल्यूशन आना ही चाहिए। और इस तरह से बेटा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है वो आपने खुद कर लेना है। तो उसमें है 11 टर्म ऑफ द एपी, वहां पे ठीक है जी दिया आपको नेगेटिव टर्म्स है पॉजिटिव भी है, तो उसमें आपने यहाँ पे 30th टर्म पूछी थी, वहां पे कौन सी पूछी थी 11th टर्म। तो ओके बेटा सी, इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक इट, शेयर and then subscribe the channel to get the next